Hey guys, this is Anchal Gautam and you are warm welcome to my channel Gautam Education 2.0। गाइस 2.0 के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। सो यदि कोई भी क्यूरियस है जानने के लिए तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो में जा सकता है। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में। तो गाइस आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो वीडियो है ये टोटल स्पोकन इंग्लिश बेस्ड है। ओके गाइस, ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है हर टाइप के एज ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज लेवल स्टूडेंट हो या तो एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जो स्पोकन इंग्लिश है वो बेस से हाई लेवल सिखाऊंगा, मींस बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो 5th क्लास स्टूडेंट्स हो, 6th क्लास स्टूडेंट हो या तो कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस से ले जाऊंगा, सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, फिर वहाँ से हम दो सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस जोड़ते हैं, फिर टेंसेस यूज़ करेंगे और फिर हम वहाँ से कन्वर्सेशंस करना स्टार्ट करेंगे वोकैब के साथ। अब गाइस इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा तभी जब मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा। और गाइस इस चैनल में मैं कभी भी अपनी वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलता। आप इस वीडियो को देखिए, यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप भले इस वीडियो को लाइक करिए। और इस वीडियो में मैं इस सीरीज़ में क्या कर रहा हूँ, एक मिनी कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें मैं हर एक वीडियो में आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उस क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लास्ट में देने हैं, अलॉन्ग विथ योर नेम और योर व्हाट्सअप नंबर। ये चीज़ मैं अपने पूरी सीरीज़ में करूँगा और जो मेरे इस सीरीज़ के जो लास्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनके नाम अनाउंस करूँगा और उनको कोचिंग की तरफ से गिफ्ट प्रोवाइड होंगे। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सो हेलो गाइस, बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर आई वांट टू टेल यू द आंसर ऑफ a question which comes in the mind of all the students, that what is the importance of spoken English and why should learn spoken English. So guys, the meaning of both the questions are nearly same. So I gonna tell you some reasons that why the English is important. Okay, so let's start. The first thing is English is a global language. I mean to say that people do understand and do speak English is the second language in many countries. If people are visiting or are traveling in any other countries, if they don't know the language of that country, so they are unable to communicate to any type of native persons of that country. So at that time English is the beneficial or helpful language. With the help of this they can communicate the native person of that countries, and with the help of this language they can easily survive of that country. Okay, so for this English is important. Is educations, as you all know that there are many books which are written in English language, and if you want to get knowledge of that book, so you should know English, because if you are unable to understand English then you are unable to get knowledge of that book or from this book. Okay, and if you want to pursue higher educations in the field of medical, space science or technology, so you will have to opt English language. There is no alternative. So for this English is important in the field of educations. Next thing is internet friendly. On the internet the majority websites are written and created in English language. More than 50% of the web content is in English. Only this argument shows that the English is important. If you are get knowledge from the Google or any of the web, so you have to be learn English. As the last and the most important reason is job opportunity. As I already told you that English is a global language, and if you are talking about the job, so the chances of getting job for those person who speak English well are more as compared to those person who are unable to speak or understand English. If you speak English well, then you can easily get job in any part of the world. So guys, these reasons which implies
that English is most important in our life. So guys, now start our lecture. So students, firstly we will discuss about English. English है क्या? तो देखिए, इंग्लिश जो है वो क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं भाषा। अब लैंग्वेज के लिए किसकी जरूरत होती है? साउंड की जरूरत होती है। और जो साउंड होता है वो कहाँ से आता है? लेटर से आता है, मीन्स अक्षर से आता है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। गाइस याद रखिए, अल्फाबेट का अल्फाबेट्स कभी भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लेटर और अल्फाबेट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यदि मैं आपसे बोलूंगा कि ABCD, ये आप बताइए क्या है, तो आप में से 90% लोग बोलेंगे कि ये अल्फाबेट है। गाइस ये लेटर है। जब हम इनका अरेंजमेंट करते हैं या इनको कलेक्शन करते हैं A से लेके Z तक, तो ये क्या फॉर्म हो जाता है? अल्फाबेट फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। सो द अरेंजमेंट और द कलेक्शन ऑफ द लेटर फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में रहते क्या क्या चीजें? दो चीज होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर वन वोवेल्स। A E I O U, इनको छोड़ के जितने भी रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा थोड़ा सा लेटर्स के बारे में। हम लेटर के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि वर्ड्स की हम डेफिनेशन बनाएं तो वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, मीन्स अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ग्लास का एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम इन्हीं लेटर्स को यूज करके एक और बना दिए। अब देखिए, ये दोनों वर्ड्स हैं, तो क्या हम इनको वर्ड्स बोल सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट का तो मीनिंग मालूम चल रहा है, लेकिन सेकंड का मीनिंग नहीं मालूम चल रहा है। तो इससे हमको क्या मालूम चलता है कि ये जो डेफिनेशन है ग्रुप की, ये थोड़ी हाफ है, ये तो इनकम्प्लीट है। तो इससे एक नई डेफिनेशन बनती है, वो क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर दैट एक्सप्रेस पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, मीन्स अक्षरों का समूह जो एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। बिल्कुल सिमिलरली हम सेंटेंस के लिए यूज करेंगे, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। गाइस वी टेक एग्जांपल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है। द नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस जो होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट और जो लास्ट वन होता है वो होता है प्रेडिकेट। यदि हम प्रेडिकेट को थोड़ा और क्लासिफाई करें तो उसके अंदर दो चीज होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब को भी और क्लासिफाई करेंगे तो वो उसके अंदर होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। मीन्स यदि कोई भी जो सेंटेंसेस है, कंप्लीट सेंटेंस, वो इसके बगैर नहीं बन सकता। देखिए, उसमें कोई भी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करें हम तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट कारक होता है। इनके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज दैट कॉमनली इंडिकेट व्हाट इट इज अबाउट और हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन। मीन्स देखिए, यदि हिंदी में बात करें तो वाक्य में जिसके बारे में बात होती है या जो कोई काम कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सीता इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मीन्स सीता अखबार पढ़ रही है। तो कौन पढ़ रहा है? सीता पढ़ रही है, तो इसलिए सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गई। यदि हम बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है? राम। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम सब्जेक्ट विच वी यूज इन दी सेंटेंसेस। देखते हैं हम। आई का मतलब होता है मैं, वी हम या हमें के लिए यूज करते हैं, यू तुम तुम्हें, ही वह लड़के के लिए या तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं, शी वह लड़की के लिए या तो फेमिनाइन जेंडर्स के लिए, इट वह निर्जीव के लिए, दे मतलब वे और नेम में किसी भी कभी नेम आ गया, जैसे राम श्याम, इस तरीके से। गाइस, इंग्लिश में जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनके अलावा जो भी हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। जैसे हम बोलें जो नॉर्मल एनिमल्स हो गया या तो ये प्लांट्स वगैरह हो गए, ये सब इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे कंसिडर किया जाता है। इसलिए यदि सेंटेंस में हम उनके सब्जेक्ट यूज करते हैं
तो वो नॉन लिविंग थिंग्स वाला सब्जेक्ट हम इनमें इसमें यूज करें। द नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। द वर्ड विच आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब टू हेल्प देम फॉर्मेशन ऑफ द टेंस, वॉइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो गाइस, जिस भी वर्ड्स का हम यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ, जिसकी हेल्प से हम उस सेंटेंस का टेंस या वॉइस को इंडिकेट कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखें जरा, हम वह शब्द जो मुख्य क्रिया को वॉइस या टेंस इत्यादि बनाने में सहायता करे, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। टोटल ये जो होते हैं 24 नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम हेल्पिंग वर्ब। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ एनी सेंटेंसेस। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ एनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस। सो देखिए गाइस, जिस भी सेंटेंसेस में इज, एम और आर का यूज हो रहा होगा, वो बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। वॉज और वर ये बताता है पास्ट टेंस के लिए, और जो विल और शैल है ये बताता है फ्यूचर टेंस के लिए। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे बाकी का क्या, ये जो बाकी हमको राइट हैंड साइड में दिख रही है उनका क्या, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इसका क्या काम होता है, तो देखिए, दिस वर्ब परफॉर्म मेन फंक्शन इन अ सेंटेंस। मीन्स जो मेन वर्ब होता है पूरे सेंटेंस में मेन काम जो होता है ये इसी का होता है। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन होती हुई दिखाई दे रही है तो वो मेन वर्ब के अंदर आती है। When there is a verb in a sentence is called main verb. Means देखिए, कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, तो यदि किसी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब दी हो तो वो जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब भी कहलाती है, और इसी मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल और फुल वर्ब भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी टेक सम एग्जांपल ऑफ मेन वर्ब। देखिए, गो जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, टीच पढ़ना, फीड खिलाना, राइट लिखना, अर्न कमाना, एक्सप्लेन समझाना, वीप रोना, येल चिल्लाना, टीयर फाड़ना, थ्रो फेंकना। तो स्टूडेंट्स, ये सब जो हैं ये मेन वर्ब की एग्जांपल हैं। स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए कि 90% जो मेन वर्ब होती हैं उनके लास्ट में ना आता है, जैसे खेलना, पीना, बैठना, जाना, खाना। ये देखिए, इसी तरीके से जो 90% मेन वर्ब्स होती हैं उनके लास्ट में ना आता है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेन वर्ब है सेंटेंस की। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मीन्स देखिए, वाक्य में जो भी शेष भाग होता है, मीन्स जो बचा हुआ होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम सभी को चेक करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल। राम और श्याम ऑफिस जा रहे हैं। देखिए, पहली बात याद रखिएगा कि यदि रहे है आता है तो वहां पे हम आईएनजी वाली वर्ब्स यूज करेंगे। इसके बारे में आपको बताऊंगा लास्ट में, बट अभी आप इतना समझ लीजिए। देखिए, इसका बनेगा क्या, राम एंड श्याम आर गोइंग टू ऑफिस। राम एंड श्याम जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफिस कौन जा रहा है, राम और श्याम जा रहे हैं। तो मैंने क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। तो इसमें राम और श्याम ऑफिस जा रहे हैं, मीन्स ये क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। आर हेल्पिंग वर्ब्स है, गोइंग जो जाना मेन वर्ब्स है, और जो लास्ट जो बचा हमारा, जो हमने बात किया था, जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज हाउ टू मेक सेंटेंसेस। एक्चुअली स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट टास्क। आपको यदि किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो आपको पहले उसका सेंटेंस बनना चाहिए। तो अब हम इसमें सेंटेंस बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसमें एक्शन वर्ब्स होती हैं, मीन्स द सेंटेंसेस विच हैव एक्शन वर्ब, एंड द अदर वन इज द सेंटेंस विच हैवंट एनी एक्शन वर्ब। तो अभी हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। आपको मालूम है कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है। तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट,
then helping verb, then mean verb, and the last one is object. Okay students, हमने helping verbs इससे पहले पढ़ा था is, am, are, was, were, which है, लेकिन उसके बाद जो राइट हैंड साइड में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स थी उनको हमने यूज़ नहीं किया था। मैंने बोला था कि इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को लेके कुछ सेंटेंस बनाते हैं और उनका यूज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं और सेंटेंस कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, हम पहली हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं कैन, जिसका हिंदी में होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम जो प्रेजेंट की एबिलिटी होती है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका हम यूज़ देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, और इसी के साथ साथ हम सेंटेंस बनाने भी सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट या तो बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अ एग्जाम्पल, सीता खाना पका सकती है। तो हम इसको देखेंगे कि इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता। तो जो सीता आएगा वो सबसे फर्स्ट में आएगा, और फिर हम जो हिंदी सेंटेंसेस है उसको हम बैक साइड से फ्रंट साइड मूव कराएंगे। देखिए, सकती है, इसका मतलब आपको मालूम है क्या होता है, कैन होता है। पकाने को हम क्या बोलते हैं, कुक। और जो लास्ट वन इज जो है वो खाना, इसको क्या बोलते हैं हम, फूड। तो इससे हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार होता है, वो है सीता कैन कुक फूड। अब हम कैन के कुछ और सेंटेंसेस लेके देखते हैं। पहले हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आपको पहला सेंटेंस ये है, पंकज एक पत्र लिख सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, इसमें आप इस सेंटेंस को, जो हमने अभी इससे पहले एक प्रीवियस सेंटेंस बनाया था उसके जैसे आप इसको बना के देखिए, या तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप इसमें बना के देख सकते हैं। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पंकज कैन राइट अ लेटर। अब बात करते हैं सेकेंड सेंटेंस, इसमें क्या है, पीटर ओलंपिक में पार्ट ले सकता है। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पीटर कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। और थर्ड सेंटेंस इज, आज टीचर इस चैप्टर को समझा सकती है। टुडे द टीचर कैन एक्सप्लेन दिस चैप्टर। फोर्थ वन, राहुल इस बाइक को सुधार सकता है। राहुल कैन रिपेयर दिस बाइक। स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इस सेंटेंस में पॉजिटिव का सेंस आता है, इसलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, अंकित लैपटॉप चला सकता है। अंकित कैन ऑपरेट लैपटॉप। स्टूडेंट्स, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उसमें उसको चलाने के लिए हम ऑपरेट वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हमारा सिक्स सेंटेंस, गीता स्टेज में गाना गा सकती है। इसका क्या होगा, गीता कैन सिंग अ सॉन्ग इन स्टेज। सो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस की। स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने के लिए हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, जिससे ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाते हैं। अब हम कुछ नेगेटिव के एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंसेस लेके देखते हैं। आज हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो टुडे वी कैन नॉट गो टू स्कूल। देखिए, कैन के बाद हमने जस्ट नॉट का यूज़ किया है इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, वी टेक सम मोर सेंटेंसेस। खराब मौसम होने के कारण आज राहुल ऑफिस नहीं जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें दो फ्रेजेस गिवन है हमको, तो पहले हम फर्स्ट वाला बनाएंगे। देखिए, खराब मौसम होने के कारण, तो के कारण के लिए हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं, तो ड्यू टू बैड वेदर। और जो इसके बाद जो सेकंड फ्रेजेस है, सेकंड सेंटेंसेस है, इसको हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। आज राहुल ऑफिस नहीं जा सकता है, तो राहुल कैन नॉट गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम सब्जेक्ट के आगे लेकर आते हैं, और ये हम सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस में करते हैं जिसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है। जैसे यदि मैं बोलूँगा आपको कि क्या आप इस वेट को उठा सकते हैं, तो आप
मुझे आंसर देंगे यस या नो में, आप मुझे रीज़न नहीं बताएंगे। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिसमें जो आंसर है वो यस या नो में मिलते हैं, वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको सब्जेक्ट के आगे लेकर आके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम पार्टी में जा सकते हो? सो कैन यू गो टू दी पार्टी। देखिए यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया, आगे ले आया और क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया। इसी के तरीके से हम कुछ और सेंटेंस लेके देखते हैं। क्या प्रधानमंत्री आज लोगों को संबोधित कर सकते हैं? तो कैन द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल टुडे। स्टूडेंट्स, आप जो टुडे है वो आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट्स, let's moving to the next word, which is could. Actually students, this word is so complex. Now why I'm saying this word is complex? Only for the use of this word. The use of this word is multiple. देखते हैं कहाँ कहाँ हम could वर्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, जैसे हम जो कैन का यूज करते थे उसकी वो प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए करते थे, तो यहाँ पे हम जो पास्ट की एबिलिटी होती है उसको बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में हम पॉसिबिलिटी सेंटेंस बताने के लिए, संभावना वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तो उसको बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ऐसे ही परमिशन सेंटेंस या कोई रिक्वेस्ट सेंटेंस होगा तो उसमें भी हम किसका, कुड का यूज करते हैं। और जो लास्ट वन है हमारा इमेजिनरी सेंटेंस, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। अब हम इन सभी के कुछ सेंटेंस लेके देखेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से और कहां पर हम कुड का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला हम लेते हैं पास्ट एबिलिटी वाले सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जो कुड का यदि हम हिंदी में नोटेशन लेते हैं तो इसका सेंस आता है सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया या सका। एक्चुअली सकता था जो और सकती थी, सकते थे, इसकी जगह हम कुड हैव का भी यूज करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं पास्ट एबिलिटी वाले सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, कल मैं पार्टी में जा सका, मतलब ये उसकी पास्ट एबिलिटी थी कि कल वो पार्टी में जा सका। सेंटेंस कैसे बनेगा, यस्टरडे आई कुड गो टू पार्टी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सोमवार को मौसम खराब होने के कारण मैं ऑफिस नहीं आ पाया। देखो ये भी इसकी एबिलिटी बता रही, पास्ट एबिलिटी, कि उस दिन क्या हो रहा था, मौसम खराब था, इस कारण से वो ऑफिस नहीं जा पाया। तो देखें कैसे होगा, ड्यू टू बैड वेदर आई कुड नॉट कम टू ऑफिस ऑन मंडे। तो ये जो दो सेंटेंस थे ये एम्प्लीफाई कर रहे थे कि ये पास्ट एबिलिटी वाले सेंटेंसेस हैं। हम लेते हैं पॉसिबिलिटी सेंटेंसेस। देखिए पॉसिबिलिटी एक्चुअली मीन संभावना वाले, कि ऐसा हो सकता था। इस तरीके से कल बारिश हो सकती थी। स्टूडेंट्स देखिए, दिस सेंटेंस शोज द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन यस्टरडे। मीन्स कल के बारे में ये हमको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कल ऐसा मौसम रहा होगा जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि कल बारिश हो सकती थी, इसलिए हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। देखिए क्या, इट कुड रेन यस्टरडे। ठीक, सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, मैं कल आपके घर आ सकता हूं। अब देखिए यहां पर भी पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है। ये मैं बोल रहा हूं कि मैं कल आपके घर आ सकता हूं, अब आऊं ना आऊं वो बात अलग है। ओके, सो आई कुड कम योर होम टुमारो। अब स्टूडेंट्स आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे सकता हूँ लिखा है तो आप सोच रहे होंगे हम कैन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जो कैन का यूज़ पढ़ा है वो एबिलिटी के लिए पढ़ा है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम उसका यूज़ किए हैं। लेकिन यदि कहीं भी पॉसिबिलिटी का यूज़ होता है तो वहाँ पे हम कुड या मे का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम कुड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम कुड के बारे में यहाँ पे सेंटेंस ले रहे हैं। द नेक्स्ट इज परमिशन सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे परमिशन सेंटेंस में हम कुड का यूज किस तरीके से करते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, देखिए परमिशन लिया जा रहा है। कुड आई सिट हियर, तो इस तरीके से हम यार सेंटेंस यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू राम।
तो इस तरीके से हमारा ये परमिशन सेंटेंस यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट वन है वो इमेजिनरी सेंटेंस, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो लेते हैं एग्जांपल, काश मैं वीडियो बना पाता, आई विश आई कुड मेक वीडियो। काश मैं पियानो बजा पाता, आई विश आई कुड प्ले पियानो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कुड के यूज़ पढ़ें कि कुड का यूज़ कहाँ कहाँ और किस किस केसेस में और अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एंड द लास्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस वीडियो इज शुड। लेकिन उससे पहले, यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साइड में एक बेल रिंग है, उसको भी प्रेस कर लें, जिससे यदि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट शुड। शुड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो शुड का जो हिंदी नोटेशन है वो है चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चाहिए हम दो जगह यूज़ करते हैं, एक एज अ हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब में हम शुड की यूज़ करते हैं और मेन वर्ब में वांट यूज़ करते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इसको कैसे होगा? वी शुड लर्न इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बनेगा। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज, तुम्हें इसे बदलना चाहिए। सो यू शुड चेंज इट। द नेक्स्ट इज, इस कठिन परिस्थिति में लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब देख रहे हैं आप, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो वो उसी के लिए अब मैं ये सेंटेंस है, इस कठिन परिस्थिति में लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखिए, पीपल शुड हेल्प द पुअर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। द नेक्स्ट इज, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। गलती के लिए हम मिस्टेक का यूज करते हैं। बच्चों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो क्या होगा इसका? चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। बड़ों के लिए हम एल्डर्स का यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, और जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मिनी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो इस वीडियो के जो दो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। देखिए, 5 important पॉइंट दैट आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दिस वीडियो। आपको इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं या कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, जो मैंने इस वीडियो के दौरान बोला हूँ, लेकिन वो राइटिंग में आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया हूँ, मैंने आपको ओरली उसको बताया हूँ। तो वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। ओके, और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं किसके? कैन, कुड और शुड के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं जो कि 10 पॉइंट्स के हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक्चुअली क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे का देख के कमेंट दे देंगे, तो मालूम नहीं चलेगा कि किसने जो वीडियो पूरा देखकर अपने आप से आंसर दिया है। इसलिए यदि हो सके तो आप व्हाट्सएप नंबर पे इसका आंसर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि व्हाट्सएप नंबर में जो आप देंगे उसमें आप अपना नीचे नाम और स्कूल का नाम, दोनों चीज़ आपको उसमें लिखकर सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, आप उससे ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो देखिए, ये रहे हमारे कुछ स्टूडेंट्स इस कोचिंग के।